Yes. Introduce yourself without mentioning your name, role, and address. Good evening, sir. I have done graduation in agriculture from College of Agriculture, Pune under Mahatma Phule Krishi Vidyapit, and after that I have done post-graduation in extension education from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, Pusa, Bihar In which year? in 2021. And after that, After that, sir, I am preparing for government examination. what type of exams? Only agriculture based or Yes, all sir, exams? related to agriculture. Have you passed, qualified any exams? Any of Yes, them? sir, some result is in hold. I'm waiting for joining, sir. No, what type of exams you have qualified previously? So previously in some exam I have reached up to interview, like in AFO I have reached up to interview, and after that in Madhya Pradesh I have been qualified for rural agriculture extension officer. Or in Bihar? In Bihar, sir, this and also last exam BAO I have been qualified and waiting for that result. Who is going to mention? Yes, sir. This will create a very good impact. The person in front of you that you have already qualified BO exam. That means you are a qualified student. So Yes. you have to mention all these things. Okay? Okay, sir. Okay, sir. You are here for BHO. Okay? Yes, sir. BHO, what do you think? What's your main focus of work as a BHO? क्या Sir, मुख्य काम रहेगा? sir, as a BHO I have to mainly focus on related on horticulture. Mainly I have to talk to farmer and to let them know about mainly sapling. They are not aware of seedling sapling, so their result they are not getting yield up to what quality and production quality they are not getting good amount, or they are suffering. No. I was not saying that what the problems farmers are having in the farming of horticulture in horticulture. I was just asking what is horticulture in Bihar. But okay, let's go. What is horticulture? But Sir, define it. Define it. horticulture is the practice of growing fruit, vegetable, and flower. Cultivation of fruit, vegetable, and flowers. Which is main as a flower you are mentioning fruit. Yes, Which sir. horticulture product in Bihar? In fruits are mainly lychee, mango. नंबर वन अगर इन दोनों में बात की जाए तो Sir, lychee. लीची। Yes, sir. हमको तो लगता है मैंगो है, एक बार देख लीजिएगा लीची और Okay. मैंगो में। Okay, sir. लीची में देखिए दोनों के प्रोडक्शन की क्वांटिटी में आई थिंक Yes. मैंगो ज्यादा है, लेकिन Yes, ओवरऑल sir. इंडिया Quantity में में mango ज़्यादा है. ओवरऑल इंडिया में परसेंटेज की बात करेंगे तो वो लीची ज्यादा है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पूछिए अतुल सर। ओके। अच्छा, ये आप बताओ, किसी राज्य की इकोनॉमी में, ठीक है, जैसे सपोज बिहार, बिहार की इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है और क्या रोल रह सकता है? सर, हॉर्टिकल्चर का वास्ट रोल है और आगे भी रह सकता है। जैसा कि अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन का रहता है, प्रोडक्टिविटी रहता है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप। तो फिर सर और बिहार लीडिंग है, लीची में है, मशरूम में भी है सर, और फ्रूट में लाइक मैंगो में भी है। तो इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, पॉजिटिव क्या होगा? सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है सर। वैल्यू एडिशन करके सर इनकम इंक्रीज हो सकता है फार्मर का। अच्छा, आपको ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है हॉर्टिकल्चर में? सर अभी तो मुझे अच्छी तरह पता नहीं है, बट मुझे जो पता है वो मैं बताना चाहूंगी। सर बायोटेक्नोलॉजी में मेनली सर टिश्यू कल्चर वगैरह का यूज हो सकता है, और सर न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज कर कर, जैसे सर अभी लैंड कम है सर, तो लैब में कुछ किया जा सकता है सर प्रोडक्शन को लेकर। वो अच्छा ये बताइए 5 मेजर फ्रूट प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4 5 बताइए बिहार का। फ्रूट प्रोडक्ट बताने हैं सर? फ्रूट फ्रूट मेजर ओके। फ्रूट।
सर मैंगो, लीची, बनाना, हम्म। राइट नाउ सर अरे तुरंत वाटर। तुरंत नहीं बोल देना कि नहीं याद है, थोड़ा समय लीजिएगा 2-4 सेकंड का। 3 आपने बोल दिया। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में और खास करके फ्लोरिकल्चर में अगर क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम कौन सा टेक्नोलॉजी उसमें यूज करेंगे, कुछ बताइए, एग्जांपल बताइए। सर प्लीज क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना है हमें फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, और यस सर। मेनली हॉर्टिकल्चर में, तो कौन से टेक्नोलॉजी पे आप काम करोगी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी उसमें काम आएगा बताओ। सॉरी सर। इसमें सॉरी इतना जल्दी नहीं बोलना है भाई, माइक्रो प्रोपोगेशन का नाम सुनी हो। यस सर, माइक्रो प्रोपेगेशन का तो सुनिए। पूरा माइक्रो प्रोपेगेशन सिस्टम के अंदर में हम लोग टिश्यू कल्चर ले लेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग ले लेंगे, ठीक है, इन वेट्रो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ले लेंगे, तो यही हो गया ना माइक्रो प्रोपेगेशन सिस्टम। यस सर, लग रहा था सर ये आंसर होगा बट कंफर्म नहीं तो लगा रुकिए गलत रुकिए बोल। भाई, ये सब नहीं बोलिए। आप बोलने क्यों लगती हैं? बाद में बात करेंगे ना। अच्छा ये सब। बताओ, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, हम्म। बिहार का जो एग्रो क्लाइमेट जोन 2 है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, उसके अंदर में प्लांटेशन क्रॉप कौन सा आइडियल होगा। सर टी होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल में कौन से ऐसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप को नोटिफाई किया है जो कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े पैमाने पे उसका कल्टीवेशन हो रहा है। सर श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक टी। गुड। पाइन एप्पल, उसके बाद टी, दोनों। टी को नोटिफाई किया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के रूप में बिहार सरकार में, और उसके फिर चाय चाय विकास कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। गुड, संतोष सर, अनम्यूट। अभी आवाज जा रहा है? हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा, चलिए सोनाली जी। चलिए चलिए, संतोष सर। राइट राइट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ब्लॉक थैंक यू। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए आप चयनित हुए हैं इंटरव्यू में। ठीक है, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा अभी हॉर्टिकल्चर से संबंधित। ठीक है। संतोष सर एक, पहला हाँ हाँ। बता देना चाहते हैं, संतोष सर अभी डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अररिया में, और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन भी हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी काफी काम आएगा आप लोगों को। और अभी इंटरव्यू आपका जब समाप्त होगा तो लास्ट में संतोष सर एक आपको टिप्स बिल्कुल, वगैरह। मैं जब इंटरव्यू समाप्त होगा तो फिर अब बताऊंगा, ओके विभाग सर। के बारे में बताऊंगा ओके सब। ठीक संतोष है। सर। ठीक सर, चलिए गो है। अभी हम कर इंटरव्यू पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें ये बताइए कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए हैं, कहाँ से? सर यूजी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे से सर, और पीजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुणे में आपने पढ़ाई किया है तो हम मुझे स्पेसिफिक जो है वहाँ की फ्रूट्स क्रॉप, नासिक पुणे ये सब जो एरिया है, स्पेसिफिक फ्रूट क्रॉप्स कौन से हैं? सर ग्रेप्स से वहाँ पे वेरी मैंड्रीन गुड। है सर। वेरी गुड। ग्रेप्स में मुझे 2 डिजीज का नाम बताइए आप। आपने देखा भी होगा और बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए होंगे, कौन कौन से डिजीज है ग्रेप्स का? सर डाउनी मिल्ड्यू और ग्रेप्स है सर। डॉनी मिल्ड्यू और थ्रिप्स। यस सर। तो डॉनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं अच्छा, कर पा। डॉनी मिल्ड्यू कैसे कंट्रोल करेंगे? सर फंजीसाइड यूज करेंगे सर। कौन सा फंजीसाइड यूज करेंगे? सर मेटल एक्जिल भी और बॉडेक्स मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं सर। बॉडेक्स मिक्सचर कैसे करेंगे यूज? सर बॉडेक्स मिक्सचर समझ रहे हैं कहाँ लगता है वो? और डॉनी मिल्ड्यू कहाँ पे लगता है? सर फ्रूट में सर ग्रेप्स। नहीं, लीफ में लगता है या फ्रूट्स में लगता है या कहाँ लगता है? सर लीफ में मेनली। तो लीफ में होता है तो बॉडेक्स मिक्सचर या कैसे करेंगे यूज? बॉडेक्स मिक्सचर कहाँ होता है यूज? सर मेटल एक्जिल सर। मेटल एक्सिल ठीक है, अलग वाली बात है, लेकिन बॉडेक्स मिक्सचर तो आप पेड़ के तने में आप लगाते हैं ना, जो पेस्ट बना करके करते हैं या मिक्सचर बना करके करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ में जो कलरिंग करते हैं उसमें बॉडेक्स मिक्सचर का पेस्ट बना के रहता है। यस सर।
अच्छा ठीक है। तो ग्रेप्स के कितने महीने का क्रॉप होता है? कितने सीजन में होता है? सॉरी सर। नहीं, बताइए आप। नासिक बगल में है, हब है ग्रेप्स का, जान रहे होंगे आप। ठीक है। नंबर दूसरा सवाल, आप मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बताइए। कैसे क्लासिफाई करेंगे फ्रूट्स का, विथ एग्जांपल। सर क्लासिफिकेशन लाइक किस बेसिस पे सर? ट्रॉपिकल, जिस बेसिस पे सर आता है सर। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बेसिस पे सर। बिल्कुल आप करिए ट्रॉपिकल। ना। मैं क्लासिफिकेशन, फुल क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ फ्रूट्स का। क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इस तरह से विथ एग्जांपल, वन वन एग्जांपल दीजिए। फिर ट्रॉपिकल में मैंगो आ जाएगा, सब हम्म। ट्रॉपिकल में लीची आ जाएगा, टेम्परेट में सर एप्पल आ जाएगा। Yes. गुड, आगे। और और क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक है सर। नॉन क्लाइमेट्रिक में सर पाइनएप्पल हो जाएगा सर, और क्लाइमेट्रिक में सर मैंगो गुआवा हो जाएगा। नॉन क्लाइमेटिक में पाइनएप्पल आ जाएगा? सर श्योर है? सिट्रस। श्योर? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, सिट्रस बस आएगा सर नॉन क्लाइमेट्रिक में। पाइनएप्पल को लेकर थोड़े कंफ्यूज। सिट्रस है, पाइनएप्पल भी, कॉन्फिडेंस भी, कॉन्फिडेंस। अभी कभी कभी आपको इंटरव्यूअर पूछेगा पाइनएप्पल है या नहीं, तो कॉन्फिडेंट है, पाइनएप्पल है नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है, आगे बढ़िए। दो होगा आपका, ट्रॉपिकल हुआ, सब ट्रॉपिकल, फिर क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक। और बताइए। सॉरी सर, और ठीक नहीं है, कोई रिकॉर्ड बात नहीं। होता। ठीक 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 ठीक। ओके, और लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर में टोपियरी सब्जेक्ट आपको पता होगा। टोपियरी क्या है और इसका जो है यूज कहाँ कहाँ करते हैं? टोपियरी से टोपियरी, टोपियरी सिंपल, आप थोड़ा सा सोचिए, समझ में पढ़ा होगा आपने। सर टोपियरी सर उसे बोलते हैं, मैं गेस कर रही हूँ सर, जो स्पेसिफिक शेप देते हैं सही प्लांट। गैस है, बताइए, सही गैस किया आपने। सर हाँ सर, तो पर्टिकुलर शेप देते हैं उसे टोपियरी बोलते हैं, किसी प्लांट को। किसको सेब देते हैं, किसको सेब देते हैं? प्लांट को सर, प्लांट को सर कोई स्पेसिफिक कुछ बनाकर कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म में शेप देते हैं सर, उसको डिजाइनिंग करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लैंडस्केपिंग में। हाँ। हाँ, लैंडस्केपिंग टोपियरी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नंबर दो, लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा हॉर्टिकल्चर निदेशालय के अंतर्गत कुछ योजनाएं मुझे बताइए, कौन कौन सी योजनाएं चल रहे हैं? तो छत पर बागवानी योजना है बिहार सरकार की। और सर फिलहाल ये याद है, सॉरी सर। बहुत ही अहम है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। हम्म, ठीक है, ठीक है आनंद सर, फिर अब बाद में बताएंगे, अभी स्टार्टिंग है इनका। ओके ओके। हम्म, सोनाली। हमारे अर्जुन सर। हाँ सर, ये बताइए मेजर डिफरेंस बताइए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में। सर ट्रेनिंग इनिशियल स्टेज में देते हैं सर, ट्रेनिंग हेवीली करते हैं। प्रूनिंग सर लेटर ऑन स्टेज में देते हैं, मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेज पे देते हैं और लाइटली करते हैं। ट्रेनिंग का पर्पस सर होता है, मतलब मेनली सेप देने के लिए करते हैं, वाइल प्रूनिंग सर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए फ्रूट का क्लासिफिकेशन बताइए फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। सर लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल के एग्जांपल बताइए। डे टोमेटो। हम्म, ये डे न्यूट्रल होता क्या है? सर डे न्यूट्रल, इसको सर लाइट का इफेक्ट नहीं होता है उसके फ्लावरिंग पर, वो थ्रू आउट सर लगा सकते हैं। कुछ बताइए, एग्जांपल बताइए। एक टोमेटो हो गया और
3 एग्जांपल बताइए। टोमेटो हो गया सर, चिली हो गया, चिली। राजमा हो गया सर, फ्रेंच भी। अच्छा, ये बताइए, एरिया एंड प्रोडक्शन में फ्रूट का एरिया सबसे ज्यादा किसका है और प्रोडक्शन में किसका है? सॉरी सर। देखिए, एरिया सबसे ज्यादा मैंगो की है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बनाना की है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर, एपोमेक्सिस क्या होता है? सॉरी सर, एपोमेक्स सर, मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ सर, इस टाइम में पढ़ी हूँ सर, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। एप पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सर प्लीज रिपीट। किसी भी फ्रूट को अगर हमको सीडलेस करना है तो कौन सी प्रक्रिया उसमें होती है, क्या होती है? कैसे हम ऑब्टेन करते हैं सीडलेस फ्रूट? सर पार्थेनोकार्पी, आई एम नॉट श्योर। पार्थेनोकार्पी होता है, क्या होता है पार्थेनोकार्पी? सॉरी ये सर। बताइए, प्लांटेशन क्रॉप बताइए, किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्लांटेशन क्रॉप? सर जो लार्ज स्केल पे ग्रो करता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद फिर उसका यूज करते एग्जाम्पल बताइए कुछ, बिहार में जो होता है प्लांटेशन क्रॉप। हैं। बिहार में सर टी। कौन कौन? टी सर। हम्म। टी। और कोई? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, मैंगोस्टीन के बारे में जानते हैं? मैंगोस्टीन, उसकी फैमिली यस बताइए। सर, श्योर नहीं हूँ, मे बी स्टरक्यूलिएसी। स्ट्रिपलेजी। अच्छा, फालसा की फैमिली बताइए। टिलिएसी। इसके साइंटिफिक नेम क्या है? सब इनइक्वालिस ग्रेविया, समथिंग लाइक दैट। ग्रेविया सबइंक्वालिस। अच्छा, आप बताइए, ओनियन की ऐसी वैरायटी बताइए जो खरीफ में हम उसकी सोइंग करते हैं। सर मे आई गेस दैट। करिए। सर अर्का बिंदु। और एक? सर एक ही रिकॉल कर। अरका बिंदु तो ओनियन की हो गई, पूसा बिंदु किसकी है? सर मे बी ब्रिंजल। अच्छा, ये बताइए, एक मैंगो में बहुत इंपॉर्टेंट, उसको डिजीज बोल लीजिए, डिसऑर्डर बोल लीजिए, मैंगो मॉलफॉर्मेशन होता है, यस उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैंगो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन के कारण होता है, क्लस्टर लाइक फॉर्म हो जाता है सर, मैंगो मालफॉर्मेशन में झुमका टाइप। हम्म। और कोई फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। पोटैटो की कुछ डिजीज बताइए। सॉरी, सर डिसऑर्डर बताइए पोटैटो का, डिजीज नहीं, डिसऑर्डर बताइए। पहले डिसऑर्डर और डिजीज में डिफरेंस क्या है ये बताइए। सर डिजीज मेनली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, और डिसऑर्डर कुछ डिफिशियंसी के कारण होता है सर, कोई एलिमेंट मतलब डिफिशियंसी है तो उसके कारण। अच्छा, बताइए, डिसऑर्डर बताइए पोटैटो की। रिकॉल नहीं, ब्लैक समथिंग ऑक्सीजन ब्लैक डिफिशियंसी स्क्रॉप। के कारण। अच्छा, एक एक मेजर आपने देखा होगा, एक ग्रीनिश पोटैटो में ग्रीन होता है, वो किसकी वजह से होता है? सर सोलेनिन के कारण हो जाता है। कैसे होता है सोलिन सर वो एक्यूमुलेशन कैसे होता सर वो ट्यूबर का एक्सपोजर वो सनलाइट में ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो सर वो एक्यूमुलेशन होता है सर सोलेनिन का। है? उसके लिए क्या करना पड़ता है?
उसके लिए सर अर्थिंग अप करेंगे सर। कितने दिन सोइंग के कितने दिन बाद करते हैं? अर्थिंग अप कितने दिन बाद करते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, सोइंग के कितने दिन बाद करते 40 to 45 days। हैं? अच्छा, ठीक है सर, आराम से, अच्छा, ठीक लास्ट का 2 प्रश्न है, बहुत सिंपल है। ठीक है। अच्छा, एक जर्नल पब्लिश किया जाता है, ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर के नाम से, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंडियन सर हॉर्टिकल्चर। हाँ, किसके? ICAR। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट एंड बिकम अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड? सॉरी सर। कटिंग किसको कहते हैं? यस सर, कटिंग। ओके, चलिए, वेरी गुड। ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। संतोष सर, चलिए, अपना कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन वगैरह सबके लिए थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल सोनाली जी, थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। बेसिक चीजें तो आपको करना ही है। साथ साथ जो है विभाग से चलाए जा रहे जितने भी योजनाएं हैं उसको तो आपको देखना ही देखना है, यस क्योंकि सर। आप विभाग में जा रहे हैं। योजनाएं पहले से आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो इंटरव्यूअर के मन में आप जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। तो यस। इसमें योजनाएं में उद्यान से संबंधित जो है जितनी सारी योजनाएं हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा उद्यान वो हम विभाग। जो क्लासेस होंगे ना पे, उस पे हम करवा देंगे इन लोगों का। हाँ, चाय विकास, मखाना विकास, जितना ये सर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, बहुत सारा है, और कुछ मुख्य कुछ चीजें जो है स्पेशल फोकस है, जैसे क्लस्टर में बागवानी। ठीक है, क्लस्टर बागवानी। हाँ, हर जिला के लिए स्पेसिफिक क्रॉप्स पे काम किया जा रहा है। सपोज मैं अररिया की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो है लेमन पे काम किया जा रहा है, नींबू, कागजी नींबू पे क्लस्टर में बागवानी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक क्लस्टर में 25 एकड़ का क्लस्टर होगा और इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है इसके बारे में आप देख लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, उद्यान से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, वो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ कृषि विभाग में जो योजनाएं चलते हैं, जनरल योजनाएं, जैसे बीज वितरण हुआ या मैकेनाइजेशन हुआ या सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें आपको याद रखना है कि अनुदान का पोर्शन क्या है ना? 50% से लेकर के 40% से लेकर के 90% तक जो है मैकेनाइजेशन में अनुदान रहता है। ये सब भी थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ओके। दूसरा चीजें आप से पूछा जाएगा HR क्वेश्चन कुछ, जैसे आप सपोज BHO में ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो आपका क्या मतलब स्टार्टिंग हुआ, कैसे आप उस ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे उद्यान के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से काम तो हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर दिख नहीं रहा है, उसको किस तरह से आगे लेके जाएं, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। बाकी आपका जो टेक्निकल था, थोड़ा सा बेसिक चीजें देखना है। हॉर्टिकल्चर जैसे वेराइटीज पूछे, अतुल जी ने पूछा, वो वेराइटीज वगैरह सबका नाम आपको रिकॉल करना है। सब क्रॉप्स का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हुआ, फिर आपका मेडिसिनल क्रॉप्स आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। ये सब कुछ कुछ जो मेजर क्रॉप्स हैं उसकी वेराइटीज, दो दो तीन तीन वेराइटीज आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे मैंगोज में पूछा जाएगा सीडलेस वेराइटीज कौन सा है। ठीक है, सबसे जो है कि पॉपुलेशन 1 एकड़ में कौन सी मैंगो वेराइटीज की लगाई जा सकती है ना? कोई वेराइटीज लॉन्ग होता है, मतलब उसकी पेड़ बड़ा साइज का होता है, या कोई वेराइटीज छोटे साइज का होता है, उसको ज्यादा मतलब कम डिस्टेंस में लगा सकते हैं। इस तरह की वेराइटीज है, स्पेसिफिक है, आप राइटअप में पढ़िएगा या कोई बुक रेफर करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना पूछा जा सकता है हॉर्टिकल्चर से संबंधित। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि उद्यान स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि उद्यान में जितने भी योजनाएं हैं वो प्रोजेक्ट बेस पे है, DPR बेस पे, डिटेल प्रोजेक्ट्स बेस। सपोज मशरूम यूनिट है, 20 लाख का यूनिट है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है,
कोई कस्टमर यदि या कोई किसान यदि लेना चाहे तो उसको क्या-क्या चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट रहेगा। डिटेल प्रोजेक्ट हुआ या उसका यूनिट कॉस्ट क्या है, इस तरह का नेशनल हॉर्टिकल्चर के साइट पे जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है और आप एक जो है ना आप अपना प्लान बना लीजिए कि सर यदि मैं सेलेक्ट होती हूँ या किसी ब्लॉक में मुझे पोस्टिंग मिलती है तो मैं इस तरह से अपने जो ड्यूटीज है इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ और उस ब्लॉक को और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता हूँ और वहाँ के किसानों को जो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकता हूँ। इस तरह से जो माइंडसेट से जाइएगा इंटरव्यू के पास तो फिर आपका जो है पॉजिटिव चीज़ें बनेगा। बाकी अभी आपका पहला इंटरव्यू था, 1-2 बार करेंगे तो आपका हेजिटेशंस भी दूर होगा और क्लैरिटी भी आएगी। मेरे तरफ से इतना था। सोनाली इसके पहले ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एसडीओ वाले में भी इंटरव्यू हम लोग के साथ ज्वाइन कर चुकी है, तो डर वगैरह तो सोनाली का निकल चुका है और बीपीएससी के पैनल से भी काफी ये फैमिलियर हो चुकी है और अंदर के माहौल से, तो वो सब तो वो तुम्हारा चला गया। बस तुमको और आप मतलब जो भी सब लोग हैं सभी लोगों को हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम करना है बेहतर ढंग से, क्योंकि ज्यादा वेटेज क्वेश्चन और कम से कम 60-40 के रेशियो में तो रहेगा। और कोई बच्चा कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं? अभी अब क्लास नहीं होगा, इंटरेक्शन कोई देना चाहते हो अपना? तो ये सोनाली बहुत अच्छा है। फर्स्ट में आपने काफी प्रश्न का अच्छा अटेम्प्ट किया है हॉर्टिकल्चर का, और हम लोग संतोष सर लगभग 35 से 40 घंटे का हॉर्टिकल्चर का क्लास भी करवा देंगे, ओके सर। तो उससे इन लोगों का काफी कुछ हो जाएगा ऐप पे। अतुल सर वो कर देंगे सारा। इंटरेक्ट कर लीजिए। कोई बिल्कुल सोनल करा देंगे। रिकॉर्डिंग बंद करके देखिए, चलाने दीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सोनल इंटरेक्ट करना चाह रही हैं या चाह रहे सोनल हैं? आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए सोनल। पहले इंटरेक्ट कौन है क्या है उनको आने दीजिए। सामान्य अपने विषय में बताइए। सामान्य कुछ क्वेरीज होगा सोनाली जी आप पूछिए। यस एक सर, मिनट क्वेरी है हाँ सोनाली जी पूछ लीजिए पहले। सर। यही बोल रहे थे सर, जो मेनली